نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کریں الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کریں دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کریں صدر محترم اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ آج کی اس مبارک محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں جس کے بارے میں معاصر انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے قرآن پاک رب الجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 30 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا ادبا بلغا شعرا بے حیران و ششتر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت اور رحمت ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے سپر مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمان پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا تھا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رسا نصیب ہوئی یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و کافر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کی فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے حرات و بشارت کا سامان ملا یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جگہ بخشی یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار آئی آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنا حماقت بدلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا رسول ہے افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ وارتقب ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پاک پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ زمین و آسمان سورج چاند ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ قرآن رب کائنات کا سب سے عظیم اور مقدس کلام ہے کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا بھی امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر اللہ کا مقدس و پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل ہے حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ اللہ کے کلام کو سب کلام پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ خدا شانہ کو اپنے بندوں پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا غور کرنے کا مقام تو یہ ہے جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا حضرات
क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफ़िज़े कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम इसकी सिफारिश कबूल करेंगे, इनको उस हाफ़िज़े कुरान की बरकत से नजात अता होगी। दोस्तों, कुरान वो अज़ीम बरकत और सआदत है जो खुदाबंदी है, मुअद्दिन हयात और सरचश्मा जिंदगी है। वो मुस्लिम कौम जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ से चली आ रही थी, दुनिया जिसको ज़लील और हकीर जानती थी, कोई इनको ऊंट की मंगनियों में खेलने वाला समझता, कोई इनको झोला अरब का खिताब देता, कोई इनको जाहिल मक्का कहता। मुसलमानों, जब कुरान आया, जिनका नाम झोला अरब था, सहाबाए किराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था, उनको रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का एजाज़ मिला। जिस जमाने का नाम जाहिलियत था, उस जमाने का नाम खैरुल कुरून हो गया। वो फुर्दा कौम जो करवट भी नहीं ले सकती थी, ताकत और कुव्वत ऐसी लैस हो गई कि जिसने किसरा का गुरूर खाक में मिला दिया, बड़ी से बड़ी हुकूमत और सल्तनतों का तख्ता उलट दिया। दोस्तों, कुरान आया तो ज़माना मकान में जिंदगी आई, कुरान आया तो अपना मसलत का पैगाम फैला, कुरान आया तो मज़हब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो किसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बादल के झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क दम तोड़ गया। हाँ, मुझे कह लेने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो गुस्तान को फारे हुस्न अता हुई, कुरान आया तो अमन अमान और सलामती आई, कुरान आया तो शराफत और इज्जत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ती इंसानियत को नूर मिले, कुरान आया तो जलालत और गुमराही की वादी में फटके हुए इंसानों का दर्द गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला, मगर अफसोस और अफसोस हमने कुरान पाक के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया, हमने इसकी पाकिज़ात तालीमियात को भुला दिया। नतीजा यह हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और हिम्मत का ताज था, जिल्लत और रुसवाई की गार में जा गिरी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, नाकामी इसका मुकद्दर बन गई। वो कौम जिसकी एक आवाज से अफ्रीका के जंगलों के खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया, आज एक चूंटी भी इसका हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनतों का अफरीजा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिस पर कभी तारीख नाज़ थी, आज मातूम गुनाह है। वो कौम जिसकी माँ की रोशनत ताबनाक बन गई, आज मुस्तकबिल इसकी तारीख है। मुसलमानों, होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो कि तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाज़रीन जलसा, जानिसार सहाबाए किराम के कुतुबखाने में कुरान पाक के अलावा और कोई किताब नहीं थी, उन्होंने इसी को इस्तेमाल किया और इसी को लेकर वो आगे बढ़े, कामयाबी उनके कदम चूमती गई। मुसलमानों, वो भी कुरान था जिसकी बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हम करोड़ों हैं, फिर भी हमारी जान महफूज नहीं, हमारा माल महफूज नहीं, इज्जत और आबरू से हमारी खिलवाड़ है, ना हमारी मसाजिद महफूज, ना हमारे मदारिस महफूज, जुल्म स्तम की चक्की हमारे ऊपर घूम रही है। एक दौर वो भी था जिसमें मुसलमानों का मुकाबला हम्मान बिन वलीद से होता था। उस दुश्मन खुदा और दुश्मन रसूल के पास बहुत ताकत और कुव्वत है, 7,000 फौज का लश्कर जरा है, इस्लामी फौज 10,000 है। इस्लामी फौज को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है। मशवरा होता है, हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा जाता है, आप 300 आदमी लेकर जाओ और पता लगाओ कि दुश्मन के पास कितनी फौज है। हज़रत खालिद बिन वलीद की ईमानी कुव्वत देखिए, फरमाते हैं 300 आदमी की जरूरत नहीं, मेरे साथ 30 आदमी काफी है। सहाबाए किराम फरमाते हैं कि आप 30 आदमी नहीं, कम से कम 7 आदमी लेकर जाओ, ये दुनियादार और असबाब है। चनाचा 30 आदमियों को और इजाफा कर दिया जाता है और मुसलमानों का एक छोटा सा काफिला आगे बढ़ता है। चंद मील पर चलने के बाद मालूम होता है कि दुश्मन की फौज वहाँ है, उसकी तादाद 7,000 है। हज़रत खालिद बिन वलीद की ईमानी हरारत जोश में आ पड़ी और फरमाया, इस वक्त मुंतज़िर सहाबाए किराम को इत्तला की जरूरत नहीं, हम इनसे लड़ने के लिए काफी है। सबों ने एक जुबान होकर कहा, हम में शौक़ और शहादत है, जब शहादत सामने हो तो दुश्मन की कसरत तादाद से क्या परवाह। मुसलमानों का वो मुजाहिद आजम सब बनाता है, दूसरी तरफ 7,000 का लश्कर है। हम्मान बिन वलीद आगे बढ़ता है और कहता है, हम तो समझते थे कि इस्लामी फौज बहुत समझदार है, लेकिन तुम तो अहमक हो, 7,000 से लड़ने के लिए 7 आदमी लेकर आए हो।
जाओ हम तो परहम खाते हैं और दो दो बोले खजूर और चंद अशरफियां भी दे देते हैं, क्यों अपनी जानों पर जुल्म करने आए हो, यहाँ से चले जाओ। नौजवान दोस्तों, जिगर पर हाथ रखिए और सुनिए, हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि तू वाइस बनकर आया है या कमांडर बनकर, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बुज़दिली को वाज के पर्दे में छुपाता है, तुम में लड़ने का शौक और शहादत नहीं है। खालिद बिन वलीद इस्लामी फौज की इस ललकार को सुनकर जोश में आ पड़ा और अपनी फौज को हुक्म दिया, पकड़ लो इस 60 आदमियों को। जनाजे 60,000 का हमला होता है और सहाबाए किराम उनमें घुस जाते हैं। रावी कहता है, रसूल खुदा के वो जानबाज सिपाही घुसते हुए तो नजर आते हैं, फिर पता नहीं वो कहाँ है, सिवाय तलवारों के चमक के या खच्चे खच के कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ 3 घंटों में जंग का फैसला हो गया। तारीख शाहिद है, जमीन और आसमान गवाह है कि साठ ने 60,000 का मुंह फेर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौन सी चीज थी जिसने सहाबाए किराम में ये ताकत और क़ुव्वत पैदा की? यही वो कुरान था जिसने एक को 1,000 पर भारी कर दिया, 100 को 60,000 पर। किसी ने क्या ये खूब कहा है, वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादे गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तो गालिब कुछ नहीं है कसरे ईमान में। नौजवान दोस्तों, अगर हम माजी की तरह अपने हाल और मुस्तकबिल को भी रोशन और ताबनाक बनाना चाहे तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी संवर जाए तो उसकी पाकिज़ा तालीमियात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने 2 पैसे के लिए अपने बच्चे को दीन से दूर रखा और अपनी नजर उखरवी नियामतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही। याद रखिए कि खुदा के यहाँ इसका जवाब देना होगा। इस पर मैं अपनी तस्वीर को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक सीखने और सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे